নিৰ্বাচনী মহাৰণ অন্ত পৰাৰ পিছত এতিয়া ঘোঁৰাৰ বেপাৰত ধৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাই বিজেপিৰ ঘোঁৰা কিনাৰ ভয়ে কপাইছে বিৰোধী মহাজোঁটক কেৱল মহাজোঁটেই নহয় হৰ্চ ট্ৰেডিঙক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদো নিৰ্বাচন শেষ এতিয়া ঘোঁৰাৰ বেপাৰত ধৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাই বিজেপিয়ে মহাজোঁটৰ ঘোঁৰা কিনাৰ ভয়ে কঁপনি তুলিছে মহাজোঁটত কেৱল মহাজোঁটেই নহয় হৰ্চ ট্ৰেডিঙক লৈ আশংকিত অসম জাতীয় পৰিষদো গতিকে আমাৰ পুৰা সন্দেহ হয় তেওঁলোকৰ এই চিষ্টেমটোত ক'ৰবাত তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ এটা ৰচাৰ মানে আমাৰ উপলব্ধি হয় ঘোঁৰাৰ বেচা কিনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'বলৈ ভোটাৰকো আহ্বান জনাইছে বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই এতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজ সজাগ থাকিব লাগিব আৰু তেনেদৰে বিক্ৰী হোৱা প্ৰাৰ্থী বৰ্জন কৰিব ঘোঁৰা হেৰুৱাৰ ভয়ত অসমেৰ ৰাজস্থান পালেগৈ AIDFৰ 18 জন বিধায়ক প্ৰাৰ্থী সমষ্টিত থাকি যোৱা AIDFৰ প্ৰাৰ্থী মজিবুৰ ৰহমানে ক'লে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ত নহয় ফুৰিবলৈহে গৈছে AIDFৰ প্ৰাৰ্থীসকল এইটো আপোনাৰ একাংশ সাংবাদিক বা একাংশ মিডিয়া এইটো কথা ভাবিছে কিন্তু একচুৱেলি তেখেতসকলে বাহিৰলৈ যে গৈছে আমাৰ UDFৰ 18 জন কেণ্ডিডেট বাহিৰলৈ গৈছে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ত যোৱা নাই তেখেতসকলে গৈছে ফুৰিব গৈছে কথা এইটো মূল কথা শুকুৰবাৰে আজমলেও AIDFৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজস্থানলৈ যোৱাৰ প্ৰসংগত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছিল মইতো পটোৱা নাই মই পটোৱা নাই মানে কি যে আপোনাক এটা কথা সুধিছো যে ব্যক্তিগত যিটো কোনো গৈছে মই নাজানো কেইজন গৈছে নাজানো মই বুজি আছিলোঁ পিছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে খুদ কংগ্ৰেছ নেতাই স্বীকাৰ কৰিছিল মহাজোঁটৰ নেতৃত্বকাৰী দল কংগ্ৰেছে AIDFৰ প্ৰাৰ্থীৰ হোটেলৰ খৰচ বহন কৰাৰ কথা ইয়াৰ যোগেদি স্পষ্ট কৰি দিছিল মহাজোঁটে সম্ভাৱ্য বিধায়ক হেৰুৱাৰ আশংকাত ভোগাৰ কথা ইফালে বিজেপিৰ হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাৰ পৰা বাদ পৰা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPF দলো BPFৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওপৰত দলীয় নেতৃত্বই চোকা নজৰত ৰাখিছে লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলকো দুই এদিনতে প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ নামত অসমৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বই যুঁজা চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ফলাফল গণনাক লৈ এদিন থাকোঁতেই মহাজোঁটৰ ঘোঁৰা হেৰুৱাৰ আশংকাক লৈ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া শাসকীয় বিজেপি দলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাকেশ সিনহাই ক'লে আত্মবিশ্বাসহীনতাত ভুগিছে বিৰোধী মহাজোঁট আজমলে AIDFৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজস্থানলৈ যোৱাৰ কথা একো নাজানো বুলি কোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ তথা বিধায়ক ডাক্তৰ নোমল মুমিনে ক'লে নাটক কৰিছে আজমলে মুমিনৰ দাবী যিয়েই নহওক চৰকাৰ হ'ব বিজেপিৰেই জিকা কেণ্ডিডেটৰ ওপৰতে এইবিলাক কথা আহে এইবিলাকতো চব হাৰিব দেখোন যিবিলাক পলাই ফুৰিছে এই নাটক কৰি আছে জানে এইবাৰ বিজেপি এলায়েন্সে 85 সিট জিকিব কংগ্ৰেছেও গম পাইছে জিকিব বুলি গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া আগতীয়াকৈ নাটক কৰিছে হৰ্চ ট্ৰেডিং আৰু ইলেকশ্যনটো হৈছে ৰিজাল্ট দিয়া নাই এইবিলাকৰ কথা এটা মিছা কথা এটা কিয় উলিয়াব লাগে আজমলে মছলিত পইচা চইচা যোগাৰ কৰিছে বিজেপি বা এলায়েন্স কোনোবা নিব পাৰে নেকি বুলি তেনেহ'লে লাভ নহ'ব কাৰণ আমাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আমি আমাৰ যিটো কোৱালিশ্যন AGP বিজেপি আৰু EBPL আমি পাম 85ৰ ওপৰত চিট পোৱাৰ পিছত আৰু হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ কথাই নাই ইফালে কেৱল হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাতেই নহয় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সপোন নেদেখিবলৈও প্ৰকাৰান্তৰে মহাজোঁটক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দাবী চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মেজিক নাম্বাৰ অতিক্ৰম কৰিছে বিজেপিয়ে যে আমি ইতিমধ্যে মেজিক ফিগাৰ অতিক্ৰম কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰ জোঁটৰ যিকেইটা দল আছে AGP আছে UPPL আছে আমি সকলোৱে মিলি আপোনালোকক যিটো অংক বা যিটো আমি ফিগাৰ ব্যক্ত কৰিছোঁ তাতকৈ বহুত বেছি আসন পাম আৰু এই কথা নিশ্চিত হৈছে 100% নহয় 1000% নিশ্চিত হৈছে আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন আহিব এইটো কেৱল এটা কথা আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ আৰু যিটো মহাজোঁট ইতিমধ্যে তেওঁবিলাক হতাশগ্ৰস্ত হৈছে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এতিয়া খবৰ হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে সতীৰ্থ দিনেশ শৰ্মা दिनेश असम में AIDF के साथ कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ी है और AIDF के उम्मीदवारों को कांग्रेस ने नतीजे से पहले ही राजस्थान ले गए लेकिन क्योंकि कांग्रेस को डर है कि लोकतंत्र का सिरहरण ना करे बीजेपी
एक आज का क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या बात हो पाया प्रत्याशियों से आपका? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है बाड़ेबंदी जारी है। होटल फेयरमाउंट जयपुर से तकरीबन एयरपोर्ट से अगर दूरी मानी जाए तो 30 किलोमीटर दूर वो होटल है जहाँ पर इन सभी प्रत्याशियों को रखा गया है। और कल देर रात 2 और प्रत्याशी यहाँ जयपुर पहुंचे हैं, तो संख्या जो है वो तकरीबन 22-23 यहाँ पर हो चुकी है प्रत्याशियों की। और बाकी जो दूसरे लोग आए हैं उनकी कल देर रात जो लोग पहुंचे हैं उनके नाम जो है अजीज अहमद हैं जो AIDUF के हैं, और इसके साथ ही जयप्रकाश दास जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अब ये तो कम से कम साफ हो गया है कि कुछ प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के भी इनमें शामिल है। बात हालांकि अभी तक ज़्यादा वो लोग करने से कतरा रहे हैं। हमने कोशिश की थी 1-2 लोगों से फ़ोन पर संपर्क करने की, लेकिन वो कुछ बताने से फिलहाल मना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं राजस्थान के, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं। हालांकि ऑन कैमरा कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह के संकेत मिले हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में और भी प्रत्याशी जो है वो राजस्थान लाए जा सकते हैं और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो राजस्थान आ सकते हैं। तो यहाँ पर तैयारी पूरी है और कभी भी जो है वो ये लोग जो है राजस्थान आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो बाड़ेबंदी का जो है वो हम कह सकते हैं कि हब बनता जा रहा है राजस्थान, क्योंकि पहले भी कई बार बाड़ेबंदी यहाँ पर देखने को मिली, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला रहा हो या फिर गुजरात का मामला रहा हो, और अब असम के। अब यहाँ असम के मामले में खास बात यह है कि यहाँ पर अभी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं हुई है, रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशियों को ही यहाँ पर लाकर रख दिया गया है। तो अभी 2 मई को नतीजे आने वाले हैं और कई दिन बाकी हैं, तो कई दिनों तक ये लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, ये बात जो है लगभग साफ हो चुकी है। तो इस तरह का कार्यक्रम भी इन लोगों का बन रहा है कि ये कुछ एक जगहों पर जो है घूमने जाएंगे। कोविड टेस्ट जो है इन लोगों का करवाया गया था पहले, उसकी रिपोर्ट आज आनी थी, संभवतः वो रिपोर्ट आ भी गई होगी। और उस रिपोर्ट के आने के बाद में ये कहा जा रहा था कि अजमेर जो है ये लोग जा सकते हैं, वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर जाकर जियारत करने का इन लोगों का कार्यक्रम है। साथ ही प्रदेश के और भी कुछ स्थलों पर ये जाकर भ्रमण का जो है वो कार्यक्रम इन लोगों का हो सकता है। तो आज भी ये जो मामला है बाड़ेबंदी का, इसे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने निशाने साधे हैं। अब जो है वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक ट्वीट आज किया था और उसको लेकर यहाँ के जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के अशोक गहलोत, उन पर उन्होंने निशाना साधा था और ये कहा था कि लगता है कि मुख्यमंत्री जेलर की भूमिका में है और बाड़ेबंदी के जो है वो एक तरीके से माहिर खिलाड़ी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो उसे लेकर अब पलटवार कांग्रेस की ओर से आया है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये कहा है कि कोई जेलर या चौकीदार नहीं है, लेकिन देश की चौकीदारी जिन हाथों में सौंपी गई थी वही लोग जो है वो उनमें जो है वो गड़बड़ी निकल रही है। तो अब जो है वार पलटवार इस मामले को लेकर, बाड़ेबंदी जो है उसको लेकर सियासत यहाँ राजस्थान में भी गर्म होती जा रही है। असम के लोग आकर ठहरे हैं, लेकिन राजस्थान में जो है वो सियासत गर्मा रही है। जी प्रांत। दिनेश बहुत बड़ी बाड़ेबंदी है ये, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कुछ उन लोगों का प्लानिंग ऐसा है कि राजस्थान से ही असम का हिसाब निकास कर देंगे, ऐसा बताया जा रहा है। उसमें चल रहा है क्या? चल रहा है क्या उसमें? दिनेश आप सुन पा रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गया। आमार संयोग विच्छिन्न होइसे दिनेशर सहित, किन्तु इतिमध्ये आमि जनाइছো जे राजस्थाনৰ যিখন হোটেলত AIDFৰ নেতাসকলক ৰখা হৈছে তাত আৰু বহু কেইজন নেতাৰ সংযোগ হৈছে। অসমৰ পৰা নতুনকৈ আৰু বহু কেইজন নেতা তাত গৈছে আৰু তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে। এতিয়া সংখ্যা 22ৰ পৰা 24 হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছৰো একাংশ নেতা হয়তো তাত থাকিব পাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যিসকল ৰাজস্থানৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আছে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কোনো কথা ক'ব বিচৰা নাই। কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে ইয়াত ৰহস্যজনক স্থিতিও গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু যেহেতু কালি আমি কথা পাতিছিলোঁ ৰাজস্থান কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে, তেওঁলোকে কৈছিল যে এওঁলোক ফুৰিবলৈ আহিছে আৰু কোভিড টেষ্ট আজি কৰা হৈছে, কাইলৈ ফলাফল আহিব। কোভিড ফলাফল ওলোৱাৰ পাছতে হয়তো তেওঁলোকে ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, অঞ্চলে অঞ্চলে গৈ তেওঁলোকে হয়তো বিভিন্নজনৰ মনৰ ভাৱৰ বুজ ল'ব পাৰে অথবা স্থায়ীসমূহ চাব পাৰে, এইখিনি সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু ৰাজনীতিৰ যে এটা অংক তাত চলি আছে সেইটো স্পষ্ট। আমি কেইখনমান আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ এই হোটেলখনৰ।
আৰু এই হোটেলখনত AIDFৰ নেতাসকলক এনেধৰণেই আসন গ্ৰহণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি আকৌ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম যোগাযোগ সম্ভৱ হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ दिनेश शर्मा होते दिनेश प्रत्याशियों में कांग्रेस गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के कौन-कौन से लोग हैं देखिए अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिली है वो यही कि यहाँ पर जो है वो केवल AIDUF और कांग्रेस के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं एक खबर इस तरह की भी आई थी कि जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी है उन्हें शायद छत्तीसगढ़ ले जाया गया लेकिन हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है यहाँ भी कांग्रेस के नेता मीडिया से बात करने से बच रहे हैं और बहुत सीमित सूचनाएं जो है वो दी जा रही है फिलहाल अगर बात की जाए तो ये जो मामला है असम के प्रत्याशियों की राजस्थान में बाड़ेबंदी का तो इसे लेकर राजस्थान में भी जो है वो सियासत जो है वो गर्म होती जा रही है और वार पलटवार बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं जिस तरीके से ट्वीट आया था मैं जिक्र कर रहा था कि केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने ट्वीट किया था और उसे लेकर मुख्यमंत्री पर निशाने साधे थे ये कहा था कि वो लगता है कि बाड़ेबंदी के माहिर बनते जा रहे हैं और जेलर जैसी भूमिका में है और ये कहा था उन्होंने कि कांग्रेस जो है वो रिजल्ट आने से पहले ही ये मान के चुकी है कि वो डरी हुई है तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो भी यहाँ राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं तो वहाँ जो है उस सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है जैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया तो उसके बाद आज कांग्रेस प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने फिर उन पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई जेलर या चौकीदार की भूमिका नहीं निभा रहा है बल्कि देश के हाथों जिन हाथों में देश ने चौकीदारी सौंपी थी वहां पर जो है कुछ गड़बड़ नजर आ रही है और जो चौकीदार चुना गया था देश में उस पर जो है अब सवाल या निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं तो यहाँ राजस्थान में अब असम की जो बाड़ेबंदी है असम के प्रत्याशियों की उससे लेकर जो है वो राजनीतिक वार पलटवार जो है देखे जा रहे हैं और सियासत जो है गर्म होती जा रही है जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश আমি ৰাজস্থানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালো আমাৰ সতীৰ্থ দিনেশে এইখিনি শেহতীয়া আপডেট আপোনালোকক জনালে কেনেকুৱা এক অৱস্থাৰ বৰ্তমান তাত সূচনা হৈ আছে লগতে BPFৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীও তালৈ যাব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কিন্তু আমাৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে কৈছে যে কেৱল কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ প্ৰত্যাশীসকল প্ৰাৰ্থীসকলহে তাত আছে কিন্তু BPFৰ কোনো এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই অৱশ্যে BPFৰ সকল ছত্তীশগড়ত যাব পাৰে বুলিও তেওঁ সম্ভাৱনা নৈ কৰা নাই আমি ধাৰাবাহিক ৰূপত এই খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিম আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে জনাই থাকিম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ